اس بہانے جنت میں اپنا گھر بنائے گا، اپنا گھر بنائے گا۔ اور ان کا سایہ قادر ہم پر قائم رکھے۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب قاسمی دامت ذلکم العالیہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق يا بلال ولا تخش من الله إقلالا او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام بہت ہی متبرک ہے۔ اس پروگرام کو مسجد کی تعمیر سے نسبت حاصل ہے اور نسبت کی وجہ سے چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز کی نسبت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے، قرآن سے ہو جائے، مسجد سے ہو جائے، وہ چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نسبت کی بنیاد پر قیمت پڑتی ہے۔ ایک کپڑا ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ اگر اس کپڑے کو قرآن کریم کا غلاف بنا دیا جائے، قرآن کریم کا جزء بنا دیا جائے، تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کو چومتے ہیں، آپ اس کو عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اسی طریقہ سے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا ہوا کالے رنگ کا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ جو حضرات خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ غلاف کو چومتے ہیں، اس کو نسبت حاصل ہے خانہ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے۔ تو نسبت کی بنیاد پر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس اجلاس کو نسبت حاصل ہے مسجد کی تعمیر سے۔ آپ حضرات جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے گھر کو بنانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے، اور فہرست میں نام آ جائے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کریں گے کہ دیکھو فرشتوں، یہ بندے جو خود محتاج ہیں، وہ بندے ہمارے گھر کو بنا رہے ہیں، ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، بڑی نسبت حاصل ہے۔ تو فرشتے حیرت کا اظہار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ تم گواہ ہو، یہ لوگ ہمارے گھر کو بنا رہے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی دیا، 100 روپے کی شکل میں، 500 روپے کی شکل میں، 200 روپے کی شکل میں، اللہ تعالیٰ سبوں کے نام کو جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی دیا انہوں نے دل سے دیا، آئے قربانی دے کے جلسہ گاہ میں اور مسجد کے نام پہ آواز لگائی گئی تو آپ سب نے لا کے رقم کو جمع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو،
ये लोग मेरे घर को बुला रहे हैं, हम इनके लिए जन्नत में घर की तामीर करेंगे। लेकिन जन्नत में घर की तामीर करके अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं देगा, बल्कि इस जिंदगी को भी अल्लाह ताला संवार देंगे, बना देंगे। आप मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएंगे और उसके बाद जन्नत के लिए आपको मेहमान बना देंगे। तो ऐसा आप पे इनाम होगा कि सबसे पहले मस्जिद की तामीर के साथ मस्जिद को आबाद करने वाला अल्लाह ताला बना देगा। जब तक आदमी अल्लाह से करीब नहीं होगा, अल्लाह ताला की रहमतों को नहीं पाएगा, अल्लाह की नेमतों को नहीं पाएगा। इसलिए अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की जगह पर पहुंचना और अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ने की सबसे मजबूत जगह ये मसाजिद है। दुनिया की तमाम जगहों में सबसे बेहतर और मुकद्दस जो जगह है वो मस्जिद की जगह है। ये हमारी माएँ और बहनें मस्जिद में तो नहीं जाती हैं, लेकिन मस्जिद से बहुत मोहब्बत करती हैं। एक बार सहाबियात यानी वो औरतें जो हुजूर के जमाने में थी, वो हुजूर के पास गई, हुजूर की खिदमत में गई और हुजूर से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम लोग भी मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बंदगी अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करना चाहते हैं, मस्जिद में जाने की इजाजत दी जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है। अगर तुम घर में नमाज अदा कर लेती हो तो तुमको वही सवाल मिलेगा जो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने का सवाल है। तो औरतों की मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है मस्जिद से। एक अंसारिया सहाबिया जब देखा कि हुजूर खड़े होकर के खुतबा देते हैं तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह के रसूल अगर इजाजत मिले तो मैं एक मिंबर बना कर लाके देती हूँ। एक औरत ने कहा मिंबर, लकड़ी का मिंबर बना कर लाके देती हूँ। चुनांचे इजाजत मिली और उन्होंने एक लकड़ी का मिंबर, एक अंसारी साहब ने एक लकड़ी का मिंबर बनाकर मस्जिद नबवी में हुजूर के लिए दिया। तो ये जज्बा है औरतों का, औरतों का जज्बा कम नहीं है। औरतों का जज्बा आप देखेंगे एक आबादी के अंदर दावत और तबलीग से लगे हुए कुछ हजरात गए और छोटी आबादी, कम लोगों की आबादी, जैसे यहाँ देवा है, यहाँ मालूम हुआ कि आप ईमान वाले 10-15 घर हैं, बस उससे ज्यादा आबादी नहीं है। ऐसी छोटी आबादी में दावत और तबलीग के साथी हजरात गए। वहाँ छोटी सी मस्जिद फूस की और उसमें कोई आजान देने वाला मर्द नहीं था। एक बूढ़ी औरत आकर के आजान दे रही थी। हालांकि औरत के लिए आवाज को बुलंद करना जायज नहीं है, लेकिन जमात के साथियों ने पूछा औरत से कि आप क्यों आजान देती है, तो उन्होंने कहा कि हमारी आबादी में, हमारे मोहल्ले में कोई मर्द आजान नहीं देता है, तो मैं सोचती हूँ कि मस्जिद वीरान कैसे रहेगी, इसलिए मैं आकर के आजान दे देती हूँ। बहरहाल जमात के साथियों ने मस्जिद में क़याम किया और वक्त पे आजान देना शुरू किया। सुनिएगा लोगों से। और उसके बाद लोगों को समझाने गए, कहने के लिए गए कि मस्जिद को वीरान मत छोड़ो, मस्जिद को आबाद करो, ये अल्लाह का घर है। अगर मस्जिद को आबाद करोगे तो अल्लाह ताला खूब नवाजेंगे, खूब देंगे। तो एक साहब ने पूछ दिया क्या देंगे? हम अगर नमाज पढ़ेंगे और 5 वक्त अल्लाह के घर में जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या देगा? वहां उनके दरवाजे पे बकरियां बदबू थी, बकरियां। एक बकरी थी, 3 बच्चा था उसका। कहा अल्लाह ताला बहुत बरकत देंगे, इतनी बरकत देंगे कि मत पूछो। ये सारी बकरियां बढ़ करके बहुत कम दिनों में एक रेवड़ बकरियों का एक गल्ला हो जाएगा, बकरियों का एक रेवड़ बन जाएगा, बहुत बरकत है। ठीक है, उसने इरादा कर लिया कि हम नमाज को शुरू करते हैं, देखते हैं अल्लाह ताला कितनी बरकत देते हैं। नमाज को शुरू किया। देखिए जब बंदा अल्लाह से जुड़ता है तो अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेते हैं, ठोक के बजा के देखते हैं कि ये बंदा कितना टिकता है। अल्लाह ताला की रहमतों को उतारना है ना, तो
तो चुनांचे उसकी एक बकरी जैसे ही नमाज पढ़ा, बकरी का एक बच्चा मर गया। जब बकरी का एक बच्चा मर गया तो घर का आदमी सोचता है कि हमको समझाने वाले ने गलत समझाया, हमको ठग लिया, हमने नमाज पढ़ा और बकरी का एक बच्चा मर गया। फिर भी सोचा इतनी जल्दी प्रोग्राम बदलते नहीं है, बल्कि और नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं अल्लाह ताला क्या फैसला करते हैं। इत्तेफाक की बात, दूसरी नमाज पढ़ा तो दूसरा बच्चा मर गया। अब इसको बहुत गुस्सा आया कि नमाज पढ़ने के बाद तो इन्होंने कहा कि बहुत बरकत होगी, बकरियां बढ़ जाएंगी और बकरी के बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नमाज जैसे शुरू किया एक बच्चा मर गया, दूसरी नमाज पढ़ा दूसरा बच्चा मर गया। कहा अच्छा देखते हैं अल्लाह ताला क्या करे। तीसरी नमाज पढ़ा तो अब बकरी मर गई, दो बच्चा भी चला गया, बकरी भी चली गई। अब इसने सोचा कि वाकई ये सब ठग के चला गया, हमसे नमाज पढ़वा के हमारी सारी बकरी को मौत के घाट उतार दिया। देखा अब एक बच्चा बचा हुआ है बकरी का, और वो भी मैं कर रहा हूं, ये खस्सी ये छोटा सा बच्चा मैं कर रहा है। इसका अकीदा इतना खराब हो गया कि बेशी मैं नहीं करो, 2 रकत के मेहमान 2 रकत पढ़ेंगे तुम भी साथ हो। इसके ये समझ में आ गया कि हमारी नमाज पढ़ने की वजह से सब बकरी जाएगा। मेरे बुजुर्गों, नमाज पढ़ने की वजह से बकरी आती है। सुनिए, एक सहाबी रसूल है हजरत सालिबा बिन आकिब। हजरत सालिबा ने हुजूर से दुआ की दरखास्त की, अल्लाह के रसूल मेरे लिए बरकत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला तुमको रिज़्क दे रहे हैं और तुम खुशहाल हो, फिर क्यों दुआ करवा रहे हो, क्या तुमको बहुत दौलत चाहिए? ये कहकर के वापस कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत सालिबा फिर आए और हुजूर से दरखास्त किया, अल्लाह के रसूल मेरे लिए माल में बरकत की तरक्की की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल जानते थे, अल्लाह ताला ने बतला दिया था कि ये ज्यादा माल को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसलिए हुजूर ने टाल दिया, फिर उसको वापस कर दिया। लेकिन फिर आया, जब बार बार आए ना तो हुजूर ने बरकत के लिए दुआ की। बरकत जब हुई, इतना माल फैला, इतनी बकरियां फैल गई उनकी कि अब मदीना में रखने की जगह नहीं। मदीना के करीब उन्होंने एक जगह बनाई जहां वो बकरियों को रखने लगे और वहीं से बकरियों की तिजारत करने लगे। बहुत माल हो गया तो उनकी नमाज छूटने लगी। 2-3 वक्त में नमाज पढ़ने आते थे जमात से, मस्जिद नबी में आके जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया और बाकी नमाजें वो वहीं पढ़ते थे। एक बार हुजूर को ख्याल आया क्या हाल है साहिबा का। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल वो तो मदीना से बाहर चले गए हैं, इतनी बकरियों में तरक्की हुई कि आप तो मस्जिद में आकर के सिर्फ 2-3 वक्त की नमाज पढ़ते और माल बढ़ा। हुजूर की दुआ का असर हो गया, इतना माल बढ़ा कि और वो तिजारत को आगे बढ़ा के ले गए। जब फैक्ट्री शहर के करीब होती है ना तो सरकार आदेश देती है कि इसको बाहर ले जाओ। चुनांचे और वो बाहर ले गए, अपनी बकरियों की जगह को एक चरागाह बनाया और बहुत माल हो गया। इतना माल हो गया कि अब वो मस्जिद नबी आना बंद कर दिया। वो सिर्फ जुमा में आया, सिर्फ जुमा की नमाज के लिए जुमा में हाजिर हुए। जुमा में आने के साथ वो फिर चले जाए। 5 वक्त की नमाजों में उनकी गैर हाजिरी होने लगी, सिर्फ जुमा में आते। उसके बाद अल्लाह के नबी ने 2 कासिद को भेजा हुक्मनामा लेके कि जाके उनसे सदका वसूल हो, ज़कात वसूल हो। वो दोनों कासिद गए हजरत सालिबा के पास और कहा अल्लाह के रसूल ने तुमसे ज़कात लेने के लिए हमको भेजा, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तुम ज़कात दो। याद रखिएगा, माल से ज्यादा मोहब्बत होती है तो माल निकालने में बहुत परेशानी होती है। हजरत सालिबा ने मना कर दिया कि और जगह वसूल के आओ,
तब हम देखेंगे। उन्होंने जबकि बतला दिया कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, अब जाकर के दूसरे सहाबी से जो कारोबारी थे उनसे लिया ज़कात, उनसे ज़कात लिया तो उन्होंने अपनी उम्दा बकरियों को लाके सामने में रख दिया कि जो आपको लेना है ले लीजिए। तो कासिद ने कहा कि मुझको मना किया गया है कि उम्दा चुन के नहीं लेना है, बल्कि जो ज़कात में वाजिब है बस वो दो। और उसके बाद जब घूम घाम के आए, हज़रत सालिबा से कहा कि अब हम लोग वसूल के आ गए हैं, अब तुम ज़कात निकालो, बकरी में से सदका निकालो। तो वो इनकार कर गए, बहाना कर गए, कासिद वापिस आ गए। मेरे बुजुर्गों, उसके बाद क्या हुआ ये सोचने की जरूरत है। ज़कात का इनकार कर दिया, हुजूर के हुक्म का इनकार कर दिया, तो अब जब वापिस आ गए तो उसके बाद माल तो बहुत बढ़ा, लेकिन उसको एहसास हुआ जी हुजूर ने उनके लिए कुछ जुमला कह दिया कि वो नामुराद हो गया, माल के पीछे वो पड़ गया, अपने मौला को वो नाराज कर गया। जब इतनी बात उनके रिश्तेदारों ने सुना तो ये खबर पहुंचा दिया, हजरत साहिबा को ये खबर मिल गई कि हुजूर नाराज हो गए हैं और हुजूर तुम्हारे बारे में ये सब जुमला कह रहे थे। तो साहिबा में घबराहट हुई कि अब अल्लाह के रसूल की बदुआ हमको लग जाएगी, हमारा माल छिन जाएगा। घबरा करके हुजूर की खिदमत में आए कि हमारे माल को कबूल कर लिया जाए, हमारे सदका को ले लिया जाए। जो अल्लाह देता है वही अल्लाह मांगता है। लेकिन जब उसने नहीं दिया और बाद में एहसास हुआ तो हुजूर ने इनकार कर दिया कि अब तुम्हारा माल नहीं चाहिए, अब तुम्हारा सदका नहीं चाहिए, क्या कीजिएगा माल को रख के। अल्लाह के रसूल ने कासिद को भेजा, उसने इनकार किया, अब वो माल लेकर के आ रहा है और कह रहा है कि मेरा माल ले लीजिए। हुजूर ने इनकार कर दिया, तुम्हारा माल अल्लाह को नहीं चाहिए। हुजूर का पूरा जमाना खत्म हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना खिलाफत आया, उन्होंने माल देना चाहा कि कबूल कर लिया जाए, मेरा माल ले लिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा माल नहीं कबूल किया तो मुझको नहीं चाहिए माल। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया माल, जब तक खलीफा रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, माल नहीं कबूल किया। हजरत उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल से ज्यादा अरसा गुजरा, खिलाफत का जमाना रहा, वो फिर माल लेकर के आए कि मेरा सदका कबूल कर लिया जाए, ले लिया जाए माल। लेकिन हजरत उमर फारूक ने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा माल। हुजूर ने नहीं लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं लिया, हम कौन होते हैं लेने वाले। मेरे बुजुर्गों, उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जमाना आया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास वो माल देने की ख्वाहिश किया, लेकिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने माल लेने से इनकार कर दिया, सदका लेने से इनकार कर दिया और हजरत उस्मान के जमाने में उसका इंतकाल हो गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपका माल अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह आपके माल को कबूल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये नहीं देखते कितना दे रहा है, अल्लाह ये देखते हैं कि दिल से मेरा बंदा कितना निकाल रहा है। आपका 100 रुपया लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस 100 रुपया के एवज में आपको पूरी जन्नत बना करके देंगे, जन्नत में घर बना करके देंगे। तो इसको मत देखिए, ये इरादा कीजिए कि अल्लाह के घर को हम बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? अल्लाह देगा तभी बनाएंगे। ये इरादा अगर कर लेते हैं कि अल्लाह के घर को हम बनाएंगे तो मस्जिद का बनना आसान हो जाएगा। ये मत देखिए कि 100 रुपया हमसे निकलेगा या 50 रुपया हमसे निकलेगा, बल्कि ये इरादा कर लीजिए कि मेरा हाथ अल्लाह के खजाने में पहुंचेगा, हम निकाल के देते रहेंगे और मस्जिद में लगाते रहेंगे। तो इस जज्बे को अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं। कुरान मुक़द्दस में कहा गया कि वो लोग जो खर्च करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i, खुशहाली में भी और तंगहाली में नहीं है कुछ जी। 200
100 रुपया निकाल के दे दिया। ये अल्लाह को देना बहुत पसंद है। आपके पास 200-400 रुपये थे, आपने उसमें से कुछ निकाल के दे दिया, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए अल्लाह कहता है कि जो लोग खर्च करते हैं जी, तंगहाली में भी और खुशहाली में भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि माल का अंबार है उनके, लेकिन नहीं खर्च कर पाते हैं। और आप लोग थोड़ा पैसा लेकर के जेब में चले गए जी, मजदूरी करते हैं और उसमें से कुछ दे रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद करता है। अल्लाह ताला ने और एक दो बात में ये कहा कि मोमिनों के अंदर अगर ये सिफात हो जाए तो वो कामयाब है। वो क्या फरमाया कि वो गुस्सा के वक्त में गुस्सा को पी जाते हैं, माल को खर्च करते हैं और गुस्सा जब आता है तो गुस्सा को वल काज़िमीन वल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते हैं। अगर कोई तकलीफ किसी से पहुंचती है तो उसे माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बात ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है, उससे मोहब्बत करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये छोटी सी आबादी है, अल्लाह के घर की तामीर होनी है। अल्लाह ताला कैसे इस घर की तामीर फरमाएंगे, ये अल्लाह फैसला लेगा। ये फैसला हमको और आपको नहीं करना है, लेकिन हमको और आपको क्या करना है, हमको और आपको इस घर की तामीर में खड़ा हो जाना। ये दुआ कर लेनी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की तामीर के लिए हमको खिदमत का मौका दे, हमारे जरिए अपने घर की तामीर करवा ले। हजरत बिलाल से हुजूर कहते थे कि ऐ बिलाल खर्च करो, ऐ बिलाल अनफिक या बिलाल, खूब खर्च करो और अल्लाह से तंगी की उम्मीद न रखो। ऐसा नहीं कि जेब आपका खाली हो जाएगा, वो तो अल्लाह देता है और आप खर्च करते हैं, अपनी जरूरतों में खर्च करते हैं, अपने घर में खर्च करते हैं, अपनी औलाद पे खर्च करते हैं। और जब अल्लाह के हुक्म पे खर्च करेंगे, अल्लाह के घर के लिए खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला कितना देंगे। इसलिए आप खुश नसीब हैं। देखिए जिंदगी में एक दो मौका ऐसा आता है कि आदमी उस जिंदगी में उस मौका से अपनी जन्नत को बना लेता है। एक यही मौका है, अल्लाह के घर की तामीर होगी, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के घर की तामीर हो और हम इस्तेमाल हो जाए, तो इससे बढ़ के सआदत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे बुजुर्गों, उलमा किराम के बयानात को आप सुनेंगे। मेरी ये मुख्तसर सी बात ये सिर्फ इसलिए हो जानी थी कि मैं हाजिर हुआ हूँ, वरना मेरी आवाज आप देख रहे हैं बैठ गई है, मुसलसल बयानात की वजह से आवाज बैठ गई है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे बात करूँ, लेकिन जब मस्जिद की बुनियाद में हम लोग को शामिल होने का मौका मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला जिन्हों को कह दे कि मेरे घर को बनाओ, अल्लाह ताला हुक्म कर दे ये मस्जिद बन के तैयार हो जाए, आलिशान मस्जिद बन के तैयार हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमको मौका दिया, ये अल्लाह का फजल है। हमको मौका मिला है, ये अल्लाह का फजल है। जो आपने अभी दिया वो तो दिया, इरादा कर लीजिए, इरादा कर लीजिए कि इस मस्जिद की जरूरत को लेकर कोई अगर मेरे पास आएगा तो हमसे जो बन पड़ेगा, जितनी हैसियत है हमारी, उतनी हैसियत के मुताबिक हम मस्जिद बन देंगे। कुछ सीमेंट देंगे, कुछ बालू देंगे, कुछ सरिया देंगे, हम देंगे। आप जब इरादा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके पास भेजेगा, आपके पास भेजेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला नहीं देगा, आप कहां से लेंगे, कहां से देंगे, आपके पास अल्लाह तबारक व तआला भेजेगा। वाकई ये चंद घरों के लोग कमजोर है, दबे हुए हैं, इस पोजीशन में नहीं है कि ये मस्जिद को खड़ी कर सके। अल्लाह को इनकी अदा कितनी पसंद होगी, अल्लाह ताला को कितनी इनकी अदा पसंद होगी कि ये गरीब लोग, ये कमजोर लोग जी, जो अल्लाह बेनियाज है, जो अल्लाह सबको देता है, उस अल्लाह के घर की तामीर के लिए खड़े हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला को कितना राम है। अभी हम आ रहे थे गाड़ी से तो देखा हमारी माँ बहन पैदल आ रही है, क्या जज्बा था, जज्बा था कि अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, अल्लाह के घर की बुनियाद पड़नी है, इसलिए जज्बा की वजह से वो आ रही थी।
हालांकि जानते हैं कि मौसम में कोई ठंडक आ गई है, उसके बावजूद ये औरतें आ रही थी, हमारी माएँ आ रही थी, बहनें आ रही थी, ये इनका जज्बा काम कर रहा है। मेरे बुजुर्गों, जब जज्बा होता है ना तो बड़ा से बड़ा काम बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। जज्बा अगर है तो मस्जिदें बनेंगी, जितनी मस्जिदें बन जाएंगी, अल्लाह का घर है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे बना लेगा। तो आपसे ये अर्ज करना है कि इस बात को हरगिज़ नहीं देखिए कि कैसे बनेगी, बल्कि आप खड़े हो जाएंगे। बनाना तो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला कहाँ से बनवा देंगे, किसको भेज के बनवा देंगे, ये अल्लाह जानते हैं। लेकिन ये मस्जिद बनाने के साथ एक दो बात का जरूर ख्याल रखिए। मस्जिद के मसले को लेकर के इख्तिलाफ बहुत होता है, इंतशार बहुत होता है, आबादी में इंतशार बिल्कुल ना हो। जो भी हिसाब किताब हो बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो आमदनी आए उसको लिखा जाए, जो खर्च हो उसका हिसाब रखा जाए, और जितने लोग हो आबादी के सबके सामने मौका ब मौका, वक्तन फवक्तन हिसाब पेश कर दिया जाए, ताकि इख्तिलाफ का शैतान को मौका न मिले। शैतान आकर के आपस में फूट न डाल दे, इसकी पूरी कोशिश करनी है, ध्यान के साथ काम करना है। और मस्जिद जो बन रही है, मस्जिद को आबाद करने के लिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद से रिश्ता जोड़ा। जितने भी यहाँ ईमान वाले भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये पावर हाउस है, यहाँ रूह की ग़िज़ा मिलती है, जिस्म की ग़िज़ा के लिए हम दस्तरखान पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, जी लुक़मा उठाते हैं, ऐसे रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। रूह की ग़िज़ा के लिए हमको मस्जिद जाना पड़ेगा, अल्लाह के हुजूर में हमें खड़ा होना होगा। जब पूरी जिंदगी बंदा अल्लाह की बंदगी में खड़ा होता है तो उसकी एक सलाहियत बनती है कि अल्लाह के दीदार की सलाहियत बनेगी, अल्लाह ताला दीदार करवाएंगे। जब जन्नत और जहन्नम में सब लोग चले जाएंगे, बात खत्म कर रहा हूँ, जब जन्नत और जहन्नम में सब लोग चले जाएंगे और जन्नतियों को सारी नेमत दे दी जाएगी, बात सुनिएगा, जन्नतियों को सारी नेमत दे दी जाएगी। अब जन्नत में कैसी कैसी नेमत होगी, इस दुनिया में रह के नहीं सोच सकते। इस दुनिया में रह के जिस फल की ख्वाहिश होगी, सिर्फ ख्वाहिश होगी, वो फल सामने आ जाएगा। याद रखिएगा, ऐसी हवा चलेगी, मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी, हीरे और जवाहरात की बिल्डिंग में आप होंगे। जी, जन्नती को जन्नती औरतें दी जाएगी, शादी होगी जन्नत की औरतों से, जिसका नाम हूर है। क्या पूछना, कोई बदबू कोई बदबू का सवाल ही नहीं है जी। और जन्नत के नीचे नहरें जाएंगी, दूध की और शहद की, ऐसी जन्नत जिसको दुनिया के अंदर कोई जगह देख ही नहीं सकते। ऐसी जन्नत में जब सारी नेमतें दे दी जाएंगी तो अल्लाह ताला पूछेंगे बंदों से, फरिश्ते आके ऐलान करेंगे कि और कोई नेमत है अल्लाह ताला से जिसकी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर हो। सारे लोग एक दूसरे को देखेंगे कि सब नेमत तो मिल गई, हर तरह के फल फ्रूट मिल गए, बीवी मिल गए, अब कोई नेमत बाकी नहीं। अब क्या मांगेगा, वहां पर कोई आलिमों की जरूरत पड़ेगी। जन्नती लोग आलिम से पूछेंगे कोई और नेमत बाकी रह गई तो उलमा बतलाएंगे, हाँ अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह ताला को देख पाएंगे आप, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत फरमाएंगे। दुनिया में तो आप अल्लाह ताला के नूर को देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात को देखते हैं, लेकिन जन्नत में जी मिंबर बनेगा, कुर्सियां लगेंगी और मिंबरों पे अंबिया बिठाए जाएंगे और सबसे ऊंचे मिंबर पे ताजदार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाए जाएंगे। और एक ऐसी कुर्सी लगाई जाएगी जो जमीन और आसमान की वसअत से ज्यादा कुर्सी। आयतुल कुर्सी में उसी कुर्सी का तज़किरा है, आयतुल कुर्सी में उसी कुर्सी का तज़किरा है। मैदान मस्जिद के अंदर कुर्सी लगा दी जाएगी और उस कुर्सी के पीछे अंबिया की कुर्सियां होंगी। यहाँ पर सारे जन्नतियों को
अल्लाह तबारक व तआला अपना चेहरा दिखाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। याद रखते हैं, अल्लाह ताला के दीदार से सारे जन्नती खूबसूरत हो जाएंगे। यानी अल्लाह की ज़ियारत से ऐसी चमक आ जाएगी कि लगेगा कि ये सब लोग बदल गए। ये अल्लाह का दीदार किन लोगों को होगा? अल्लाह का दीदार उन्हीं लोगों को होगा जो 5 वक्त नमाज के लिए अल्लाह के घर में जाते हैं, 5 वक्तों की नमाज अदा करते हैं। ये अल्लाह का दीदार उन लोगों को होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि नमाज ये मोमिनों की मेराज, अल्लाह ताला का दीदार होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी, 50 साल गुजार चुके हैं तो पता नहीं 2-4 साल और गुजारिएगा। थोड़ी सी जिंदगी मिली है, मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, इसमें अल्लाह से रिश्ता जोड़ दीजिए, अपने मालिक से, अपने खालिक से, किसी और से नहीं, जिसने हमको आपको बनाया, हमको और आपको पैदा किया और हमारी जरूरियात के लिए पूरी दुनिया को फैला कर रख दिया, उस अल्लाह से रिश्ता जोड़ लीजिए। हमारी माँ अपने घर में नमाज पढ़े, उनके लिए उनका घर मस्जिद है, कोई एक गोशा को मुतय्यन कर ले, वहाँ नमाज पढ़े, और मर्द लोग मस्जिद से जुड़ जाए। ये असल मस्जिद का बनाना, मस्जिद का बनाना, मस्जिद को आबाद करना है। इसकी आप नियत कर लें, इंशाअल्लाह देखिए दुनिया में भी आपकी जिंदगी चमकेगी और आखिरत के यहाँ भी आप सुरखरू होंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मस्जिद बनने के लिए गारा की, मिट्टी की, ईंट की कोई परेशानी नहीं। मस्जिद बनेगी उस वक्त जब आप नमाज अदा करेंगे, तब ये असल तामीर है मस्जिद की। इसलिए कुरान में कहा गया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह। कोई भी बना सकता है ना, लेकिन कुरान कह रहा है कि मस्जिद की तामीर वही करते हैं जो ईमान वाले, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं और जो अपने आखिरत पे। तामीर का मतलब आबाद करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि महादेवा के मुसलमानों से कि यकीनन वो मस्जिद से अपना रिश्ता कायम करेंगे और मस्जिद को आबाद करेंगे। इसकी जाहिरी शक्ल का बनना आसान है। यहाँ के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि रमजान और मुलाकात करें, इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर आसानी से होगी, यकीनन होगी। आपकी बेबसी पे, आपकी कमजोरी पे अल्लाह को तरस आएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह मस्जिद की तामीर के वसाइल को पैदा करवा देगा। लेकिन आप जो आबादी के लोग हैं वो आज नियत कर लीजिए, हमारी माँ नियत कर ले कि 5 वक्त अल्लाह से मुलाकात करनी। कौन नहीं चाहेगा कि मेरी मुलाकात अल्लाह से हो, मैं अल्लाह से जाकर मिलूं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करूं। जब आप ये नियत कर लेंगे तो आपके लिए 5 वक्त नमाज में हाजिरी ये आसान हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ हजरात ने पैसा ला के दिया है, लिखवाया है, उसका ऐलान हो रहा है। और जो हजरात आगे देने की नियत कर लिए, अभी अगर नकदी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आगे देने की नियत कर लिए, तो आइए 2 मिनट में आइए, 2 मिनट में आइए, लिखवा दीजिए। पहले मेरा लिखिए 10,000 रुपये। माशाअल्लाह, रमजान बाद मुझसे हासिल करेंगे इंशाअल्लाह 10,000 रुपये मस्जिद के लिए। ये 25 बोरी सीमेंट की कीमत 10,000 रुपये इंशाअल्लाह मेरी तरफ से। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और जो हजरत इरादा कर लिया आगे के लिए, आइए आगे बढ़। देख मसला नहीं, 5 बोरी सीमेंट, 2 बोरी सीमेंट, 1 टेलर ईंट आप आसानी से लिखा सकते हैं। अल्लाह ताला बेहद देंगे आपको। आप नियत कीजिएगा, आप ले लीजिएगा, देखिए अल्लाह कितना देते हैं, देंगे तभी आप ला करके जमा करेंगे। और जिन हजरात ने दिया उनका नाम जो दिया, जिन हजरात मुफ्ती साहब जब बात कर रहे थे उस बीच में